the bond of love. Bond means बंधन. ये ऐसे चीज हैं. Actually, it is said that the best bond which is related to the bond of love. Everybody has a certain senseful emotion. Might be it is related to things, animals, or our near and dear ones. Suppose I love my mobile. Might be I love my sons and daughter also. I love you also. I love your family members also. You used to say you love your book, pen and pencil. But in this story, the bond of love which has been shown, which is related to the animals, as we are also the animal lovers, nature lovers, our near and dear ones lovers. In this story, you see Kenneth Anderson was a animal lover. He has written so many stories which is related to animals and their activities and how it came close to the human beings. The purpose of writing such type of stories only to tell you, only to motivate you that you also love the animals because they are more fair, more better than the human beings. Suppose I have a dog which is more faithful than you. As the command given to him or her, he or she used to follow it obediently. But since when I came here, many times I told, but you didn't follow the command. You feel yourself which one is better, whether that animal or you. If you want to make yourself better, then you have to develop the habit of following the command. If you don't follow it, it means you are the worst one of the animals. Kenneth Anderson once told that animals are better than the human beings. Our reason behind so deep philosophy in it, and we can see it ins and arounds. आज भी देखते हैं हमारे आसपास भी, हम बहुत सारे आदमी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, जानवर को देखते हैं और कहते हैं कि दे आर द inferior one. My sons and daughters are better than that animal. But it's your mistake. They are better than you. They are better than you because they are not greedy towards the things. They haven't the desires as you have. They have no any preconceptions regarding the other things as you have developed yourself. They do not make insult the other animals as you used to do. They are not envious towards their own species as you are envious towards yourself. You can also calculate that who is better, whether the human beings or the animals. Animals and human beings
We are also the animals. We are called the supreme of the animals. But those people who have given us this title, the supreme of the animals, super animals, I felt it is as we follow the command, as we follow the rule, as we are following the social conduct or pay the respect towards the others. And otherwise, we are certainly inferior to that animal. You see, even in our society also, when you are so small, like a small baby or baba also, everybody loves you, everybody wants for lapping, गोद लेते होंगे, used to give chocolate, lollipop और etc. But आज कोई नहीं देता होगा. I felt myself, the other used to make insult by telling against you. वही आदमी कल जो आपको गोद लेता था, आपको प्यार करता था जब आप बच्चे थे, आज वही आदमी आपका इंसल्ट करता है. The reason is very clear. Because at present, whatever I am is totally different from that stage. In Indian mythology, it is said that children are the gods, but you like the children's not. That children who doesn't make any controversy for the others, don't pay neglection for the others, don't make any controversy for the others, have no pretensions for. तभी तक वह बच्चा भगवान है जब तक कि उसके मन में कोई बुराई नहीं है, वह किसी का आलोचना नहीं करता है, किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है, तभी तक हम कहते हैं कि वह बच्चा भगवान है. लेकिन आप लोग को भगवान अब कोई नहीं कहेगा. बहुत क्लियर सी बात है. हो सके मेरी बात बुरा भी लगे, क्योंकि बुरा लगना वाजिब है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है. और लगेगा भी आपको बुरा तो मुझे बहुत खुशी होता है. एंड आई फेल्ट माई सेल्फ, लगता है मैंने सही ही बोला था. अब देखो क्यों नहीं तुमको एक्सेप्ट करता है, क्यों तुमसे लोग घृणा करते हैं. बिकॉज कि व्हेन यू डेवलप्ड in the section of age, in the section of standard, you started making yourself spoiled by developing the negative character. आपने नेगेटिव कैरेक्टर एक्वायर करना शुरू कर दिया तो आपको कौन लाइक करेगा? नोबडी. आप में बुराई आने शुरू हो गए, आपको कोई लाइक नहीं करेगा. लेकिन जब तक तुम छोटा था तो हर कोई प्यार करता था. लेकिन जानवर सब दिन वैसे रहते हैं. Those who used to keep the pet, they felt themselves that they are as now as they were earlier. वह कभी नहीं बदलता है and totally faithful towards their master. बट आप तो अपने फादर के प्रति भी लॉयल होंगे कि नहीं? आप अपने ब्रदर के प्रति लॉयल होंगे कि नहीं? आप अपने फ्रेंड के प्रति लॉयल होंगे कि नहीं? आप अपने मदर के प्रति लॉयल होंगे कि नहीं? दैट आई कांट से, बिकॉज इट इज द कैरेक्टर एज यू हैव डेवलप्ड योरसेल्फ. कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा आप पर? यू लॉस्ट योर फेथ as well as your parents lost faith over you. आज आप कितना खराब हो गए कि पेरेंट्स भी बिलीव नहीं करते हैं आप पर. पेरेंट्स भी बिलीव नहीं करते हैं. बोलो, जो पेरेंट्स गॉड लाइक होते हैं, मेनी टाइम्स आई टोल्ड, पेरेंट्स आर द प्रेजेंट गॉड. पेरेंट्स आर द प्रेजेंट गॉड.
and those present God started neglecting you. You feel yourself that how worse you are, and you are making yourself worsen every day. दिनों दिन तुम खुद को खराब बना रहे हो, इतने खराब बना रहे हो कि पेरेंट्स भी विश्वास करना छोड़ दिए, तो बाकी कौन विश्वास करेगा? किसको लगी पड़ी है आप पर विश्वास करने का? दुनिया बहुत बड़ा है, अगर इस दुनिया में खुद को खराब करना चाहते हो तो कर लो, फिर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, कोई आपको अच्छा आदमी नहीं करेगा। Many times I told there are two type of students. एक ऐसे होते हैं जो आ रहा है तो लोग खिड़की खोलकर पूछता है, बाबू कैसे हो, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है। और एक ऐसे लड़के हैं कि लोग खिड़की बंद कर देते, बंद कर लुचवा आ रहा है, वाला एक नंबर का लुच्चा है, लफुआ है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, दिन भर आवारा की तरह घूमते रहता है। तो सोच सकते हो कि कौन से कैटेगरी को डेवलप करते हो तुम, किस तरह के सिस्टम में जीना चाहते हो। एंडरसन टेल्स दैट कि सर्टेनली एनिमल्स आर बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे हैव नो एनी प्रीकंसेप्शंस रिगार्डिंग द नेगेटिव थिंग्स which the human being has been developing nowadays in this present age. तो चलो भाई, this bond of love, इस प्यार के बंधन में कहानी शुरू होती है आपके। Here there was a narrator, one who narrates the story, that is called a narrator. Certainly it means I मैं कहानी सुना रहा हूं, तो it means I am the narrator of this story, right? I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. Sloth bear, polar bear. Sloth bear actually found in our region, and polar bear, as its name is, it is found in polar areas. They are white in color, but sloth bear is black in color. हमारे यहाँ जो भालू पाए जाते हैं वो काले होते हैं, ब्राउन हम नहीं देखे हैं। कहाँ देखे? पता होगा, आजकल तो पता नहीं। अच्छा, जू में देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, होते होंगे, अब पता नहीं कितने कितने तरह के होते हैं। बट आई एम टेलिंग स्लॉथ बियर एंड polar bear. Here this story is related to the sloth bear, as narrator tells that it is my wife's pet. किसका पेट है? मेरी वाइफ का पेट है, पालतू जानवर है, स्लॉथ बियर है, जो मुझे एक्सीडेंटली मिल गया था, जो एक्सीडेंटली, संजोग से, भाग्य से एकाएक मिल गया था। कैसे मिला था? नाउ द नरेटर इज टेलिंग, 2 साल पहले की बात है। हम लोग एक शुगर कैन फील्ड से गुजर रहे थे, वेयर मैसूर। इट इज द स्टोरी which is related to India. शुगर कैन, केतारी, गन्ना खायो, उसको शुगर कैन बोलते हैं। मैसूर की बात है, उधर गन्ने फील्ड से होकर जा रहे थे और people were driving away the wild pigs from fields by shooting at them. लोग क्या कर रहे थे? बहुत सारे जंगली सुअर वो आते थे और शुगर कैन को, फील्ड को
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सुअर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो शूटिंग करके उस सुगर को भगाया जा रहा था, सुअर को, सुगर को नहीं। और अचानक क्या हुआ कि एक ब्लैक स्लॉथ बियर आ गया, पेंटिंग इन द हॉट सन, गर्मी का दिन था, पांव पटकते हुए बाहर निकला, भारी भरकम था। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. मैंने देखा यह स्लॉथ बियर है और मैंने मन में सोच लिया कि मैं ऐसे बियर को शूट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे किसी एक साथी ने बिना सोचे समझे ऑन द स्पॉट शूट। अब वह बियर तो शॉट डेड हो गया। जब शूट, शॉट एंड डेड, शॉट डेड, गोली मारकर मार देना, इट इज द ग्रामेटिकल टर्म। मैंने देखा कि वो जानवर गिर गए, लेकिन उससे ज्यादा सरप्राइज मुझे यह लगा कि ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट एंड प्रोस्ट्रेट बॉडी, वो गिरा हुआ है लेकिन उसके पीठ पर कोई फर वाला चीज मूवमेंट कर रहा है। डेथ हो जाने के बाद, मर जाने के बाद मूवमेंट करता है? नहीं करता है। लेकिन ये जब शॉट डेड हो गया, अभी भी उसके बैक पर कुछ मूवमेंट हो रहा था। फिर मैंने देखा कि a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. मम्मी तो उसकी मर गई, लेकिन उसके एक छोटे बच्चे थे, स्लॉथ बियर के छोटे बच्चे थे, जो कराह रहा था। मम्मी के गुजर जाने पर रो रहा था, वह मुझे सुनाई दिया, जो भारी पीटीफुल नॉइज था, बड़ा दया भरी आवाज निकाल रहा था। जिसको दिल है उसी को दया भी आता है, और जिसको दिल ही नहीं है तो क्या होगा। आजकल तो लोग दो चार दिल का बात करता है। एक काश ऐसा होता, दो चार दिल होता, इधर उधर टूट भी जाता तो दर्द न होता जीने में। कैसे कैसे गाने हैं, नहीं मैंने सुना था। हाँ, बड़ा ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। एक्चुअली वह जानवर रहे चाहे आदमी रहे, बच्चों के सबसे परफेक्ट बॉन्ड वह अपनी मदर से होता है, फादर से नहीं होता है। बहुत सारे रीजन है उसके, मैं उधर की तरफ नहीं जाना चाहता। मम्मी से आप लोग को भी ज्यादा लगाव होगा, सबको होता है। मम्मी का खून पीकर बड़ा हुआ है तो जरूर ज्यादा लगाव होता है। हाँ हाँ, मतलब कि कहा जाता है ना, ऐसे कहे जाते हैं। उस बच्चे की भी इस करुण आवाज को, दया भरी आवाज को सुन करके नरेटर वहां दौड़ कर आता है और उसको पकड़ने का कोशिश करता है। इट स्कूटेड मीन्स रन अवे, लेकिन वह भागा शुगर कैन फील्ड में। मैं और मेरे साथी भी उसके पीछा किया और एट लास्ट उसको धर दबोचने में सफल हो गया। गर्दन पकड़े और उसको हम लोगों ने बाहर लाया। उसके हुकेड क्लॉज थे, उसके हुकेड क्लॉज थे। हमने उसको we put it in one of the gunny bag, वो जो बच्चे को पकड़ा उसको गनी बैग में भर लिया, एक तरह का सैक, बोरा, जूट वाली बोरे नहीं, गनी बैग में उसको भर लिया।
फिर क्या हुआ, उसको लेकर मैं बंगलोर आ गया। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और लाकर मैंने उसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट करना मीन्स एज ए गिफ्ट मैंने अपनी वाइफ को दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत खुश थे। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसके गले में लाल ऐसे रिबन भी लगाए। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज ए बॉय ही शी क्रिश्चियन इट ब्रूनो, और जब उसको पता करा कि ये लड़का है कि लड़की, तो पता चला लड़का है, तो उसके क्रिश्चियन नेम रखे और उसका नाम रख दिया ब्रूनो। हाँ, ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drink milk from bottle, जल्दी ही ब्रूनो बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया। But it was but a step further, and within a few days he started eating and drinking everything, और कुछ ही दिनों में हर कुछ खाना शुरू कर दिया। पोरीज भी खाता था, ठीक है, वह पोरीज भी खाता था, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स खाते थे, वेजिटेबल, फ्रूट, नट, मीट, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, आइसक्रीम, इटसे, क्या क्या नहीं खाता था। यानी जो चीज अवेलेबल था, अब वह सब कुछ खाना शुरू कर दिया जल्दी ही। बात समझ रहे हो? एज फॉर ड्रिंक मिल्क, अब पीने में क्या क्या पीता था? मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, लिक्वर एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड। जल्दी ही अब वह सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। नाउ इसका मतलब है कि अब ये फेथ हो गया कि अब ये जिंदा रहेगा और हमारे साथ रहेगा। The bear became very attached to our two Alsatian dogs. मेरे पास पहले से 2 Alsatian dogs थे और जल्दी ही दोनों में फ्रेंडशिप हो गया। And to all the children of the tenant living in our bungalow, और हमारे बंगलो में जो भी और भी भाड़े पर रहते थे, किराए पर रहते थे, उन लोगों के साथ भी जल्दी ही फ्रेंडली हो गया। He was left quite free for the younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. जब वह younger days में, जब वो बच्चे थे, छोटे थे, younger days में अपना समय वह खेलने में, दौड़ने में बिताता था। किचन में भी दौड़ता था, इधर उधर जाकर दौड़ता था और मेरे बेड पर आकर सो भी जाता था। One day an accident befell him. एक दिन उसके साथ एक घटना घट गया। किसके साथ? ब्रूनो के साथ। आई पुट डाउन पॉइजन, बेरियम कार्बोनेट मैंने रखा था, आप लोग जानते होंगे, हैं? बेरियम कार्बोनेट एक काइंड ऑफ जहर है, टू किल द रैट्स एंड माइस। किस काम में आता है? चूहे वगैरह को मारने के लिए लाए जाते हैं। मैंने लाकर रखा था, काहे कि मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे चूहे हो जाया करते थे, किताबों को काटते थे, कपड़ों को भी काटते थे। जिस घर में चूहा होता है देखता ही है कि मतलब कितना परेशान करता है। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, जैसा वो अक्सर करता था, मेरे लाइब्रेरी में भी आता था। आज के दिन भी लाइब्रेरी में आया और उसने कुछ वह बेरियम कार्बोनेट खा गया। अब इसके इफेक्ट शुरू हो गए। पैरालाइज सेड टू एक्सटेंड टू दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब वो पॉइजन का इफेक्ट देखो क्या होता है कि पैरालाइज हो जाता है बॉडी। अब वो अपने पैर पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा, चलते चलते गिर जाएगा। पॉइजन खाने वाले की मौत बड़ा दर्दनाक होता है, या जो भी लटक के ही सुसाइड करेगा उसका भी मौत बड़ा खतरनाक होता है, या बर्निंग केसेस होते हैं वह भी बड़ा खतरनाक होता है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प टू माई वाइफ, लेकिन वह घसीटते घसीटते, क्योंकि पैरालाइज होते जा रहा था, वो मेरी वाइफ के पास आया। मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया, मैंने गेस कर लिया कि कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। मैं भी जल्दीबाजी कार से वेट रेसिडेंस आया। वेट जानवरों के जहाँ ट्रीटमेंट किए जाते हैं। मैंने कहा सर ये पॉइजनिंग केस है,
मेरा पालतू बियर टेम बियर है जो बेरियम कार्बोनेट खा लिया है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए? आउट केम ऑफ हिज मेडिसिन बुक, उसने अपने मेडिसिन बुक निकाले एंड फेवरिस रेफरेंसेस टू द इंडेक्स बिगन, इंडेक्स में खोजा, पॉइजन को देखा, बेरियम कार्बोनेट, यस बेरियम सॉल्ट, यस बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स देखा, पैरालाइज हो जाता है, बेरियम कार्बोनेट खाने के सिम्टम दिए, पैरालाइज हो जाता है। ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। इसको इंजेक्शन पड़ेगा, आप शांत रहिए, मैं अपना सिरिंज और मेडिसिन लेकर मैं आता हूँ। ए डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव, खूब कोशिश करता था कि हम मूव कर जाएं, लेकिन पैरालाइज हो जाने पर तो मूव कर ही नहीं पाएगा ना। बट क्लियरली वीकेनिंग रैपिडली, इसमें बड़ी तेजी से कमजोर होते जाता है शरीर, काफी तेजी से कमजोर होता है। एंड वॉमिटिंग होता है, ठीक है। हैवी ब्रीदिंग, दम फूलने लगते हैं, ब्रूनो का भी होना शुरू हो गया। विथ हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, मुंह खुला रहता है और मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं। ब्रूनो के साथ भी ऐसा कंडीशन होना शुरू हो गया। होल्ड हिम एवरीबॉडी, हर कोई पकड़िए उसको। इन गोज टू द हाइपोडर्मिक, यू नो हाइपोडर्मिक ए लॉन्ग नीडल होता है, यूज फॉर गिविंग द इंजेक्शन टू द स्किन में देने के लिए जानवरों को यूज किया जाता है, नहीं जानवरों को। ब्रूनो स्क्विल्स, कितने देने भाई? 10 cc ऑफ द एंटीडोट्स इंटर हिज सिस्टम विदाउट द ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। बढ़िया से पकड़ना, ऐसा नहीं कि 10 cc देना है, कोई मेडिसिन बाहर ही गिर जाए। 10 cc मेडिसिन, a later condition unchanged, but after giving the 10 cc, after injected the 10 cc, लेकिन कोई ज्यादा फर्क ब्रूनो पर नहीं दिखाई दिया। Another 10 cc injected, फिर दिया। 10 minutes later, breathing less status, Bruno can move his arms and legs a little though and can't stand yet. लेकिन अब दूसरी दफा 10 cc देने के बाद अब हाथ पांव तो हिलाना शुरू कर दिया था, कुछ जो तेज हाँफ रहा था वो भी कम हुए, लेकिन सेल्फ स्टैंड नहीं कर पा रहा था, अभी भी वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फिट। 30 मिनट बाद ब्रूनो अब पैर पर खड़ा हो पाया और फिर भर पेट खाया, ठीक है। He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. है, अब वो मेरी तरफ देखता है, खा भी रहा है, मेरी तरफ भी देखता है। कितनों बड़े से बड़े ताकतवर जानवर क्यों न हो, पॉइजन का इफेक्ट सब पर होता है। तो ये एक घटना सुनाया कि ब्रूनो के साथ ऐसा हुआ था, किस तरह उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. कहता है दूसरी घटना ब्रूनो के साथ और घटी। एक बार मैं इंजन ऑयल जानते हो ना, मोबिल, अपने कार से गंदे मोबिल निकाल करके मैंने रख लिया था, बिकॉज इट वॉज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द टर्माइट्स। ये कीड़े लगते हैं ना लकड़ी में, दीमक, कहते हैं वहां पर डाल देने से वो लकड़ी सेफ हो जाता है, इसलिए रखा था। और ब्रूनो आया और भर पेट पी गया। लेकिन इसका उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the
Alsatians in height and had even outgrown them. चलते रहा यह सिस्टम, बहुत दिन हो गए। अब ब्रूनो बड़ा तगड़ा, हेल्दी, मोटा, हत्था कट्ठा, अब वह एल्सीशियन के बराबर हो गया था। 2 डॉग था नहीं, अब उस साइज का वह हो गया था। बट जस्ट वॉज एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन अभी भी बड़ा तो हो गया, मोटा हट्ठा कट्ठा तो हो गया, लेकिन पहले के तरह जैसे वह बहुत बदमाश था, खेलक्कड़ था, बहुत प्यारा था, अभी भी वैसा ही था, लेकिन सिर्फ वह मोटा हट्ठा कट्ठा हो गया, लेकिन व्यवहार उसका वैसा ही था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, हम लोगों के बहुत शौकीन भी थे। Above all, he loved my wife and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba. अब उसका मेरी वाइफ बड़ी प्यार से ब्रूनो के जगह पर अब बाबा कह के पुकारना, बाबा कह के पुकारने लगे। What is बाबा? The हिंदुस्तानी word signifying small boy. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में छोटे बच्चों को बाबा कहा जाता है। Because they have their coordinate relation between them. दादा का पोता से, इसीलिए जो नेम दादा का वही नेम पोता का दिया जाता है, बाबा। And he could do a few tricks too. और बाबा तो अब कुछ ट्रिक भी करता था। वाह, क्या ट्रिक करता था? At the command बाबा रेसल, जैसे कहता था बाबा रेसल, तो बाबा बॉक्सिंग करता था, बाबा कुश्ती करता था। टेकल एनीवन, कोई भी आता था, यदि कोई आया बाबा रेसल, बस भालू तो 2 पैर पर खड़ा होने का महारत हासिल होता था, पकड़ लेता था और हिलाकर पटक, रेसल कुश्ती हो गई। बाबा बॉक्स, कोई आया बाबा बॉक्स शुरू कर दिया, बॉक्सिंग। गिव हिम द स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और अगर उसे कोई लाठी दे दो और कहो कि बाबा होल्ड द गन, तो वह गन की स्टाइल में उसको पकड़ता था। ये सब ट्रिक हुआ जान गया। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, और जब पूछो बाबा से कि बाबा वेयर इज बेबी, एंड ही इमीडिएटली produced and cradled affectionately the stump of wood which he had carefully concealed in a straw bed, but because of tenants children, poor Bruno और बाबा had to kept chained most of the time. जब बाबा क्रेडल कहता था तो एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको गोद में लेकर वह ऐसे ऐसे क्रेडल करना शुरू कर देता है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं हिलाते हो गोद में लेकर के, वैसे शुरू कर देता था। बट ए सर्टेन फियर वाज बिफोर देम बिकॉज ही बिकेम टू हैवी, लुक्स सो डेंजरस, एंड इट वाज द फियर फॉर द चिल्ड्रन दोज हु हैव बीन लिविंग इन हिज सराउंडिंग। फॉर दिस बाबा यूज्ड टू कीप इन चेक। बाहरी बच्चों को देखकर और सब बच्चों को कोई खतरा न कर दे, कितनों है तो जानवर ही है, हैं? अब वह बड़ा विशाल हो गया है उन सब बच्चों के भय से, क्योंकि बच्चे पड़ोस के अक्सर खेलते थे, छोटा था, अब यह बड़ा हो गया, अभी भी आ जाता है उसके पास। जानवर का कब मूड बदल जाए कौन जानता है, इसीलिए बाबा को अब चैन में बांध कर रखने लगा। इट वॉज द सैड मोमेंट, याद रखें। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ and my friends advised her to keep Baba to a Jew at Mysore. He was getting too big and keep at home. After some week of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes.
the Jew sent the cage for Mysore in a lorry a distance of 87 miles and Baba was packed off. अब बड़ा हो गया, मैंने भी, मेरे बेटे ने भी, मेरे और दोस्त ने भी मेरी वाइफ को सलाह दिया कि भले बाबा का आपके साथ वेल अटैचमेंट है, यह बात सही है, लेकिन जिस तरह यह अब बड़ा हो गया है, आपको चाहिए कि इसको किसी जू में दे देना चाहिए, क्योंकि खतरनाक हो सकता है, आपको जू में दे देना चाहिए। At first my wife didn't want to send the Baba into zoo due to the love she has paid for. इतना प्यार करती है वह, कैसे उसको पिंजरा में बंद करवा देगी? औरत है, उसके दिल बड़े होते हैं, नहीं, उसको दया ज़्यादा होता है, उससे उसका ज़्यादा लगाव हो गया था, नहीं चाहती थी, बट सबके कंसेंट को एक्सेप्ट की। इसके बाद ए लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जो जू के संरक्षक होते हैं, जो जू की देखभाल करता है, उसको एक लेटर लिखा गया कि डू यू वांट अ पेट बियर? यस, चाहिए हमको, और एक लॉरी भी भेज दिया वहाँ से। 87 किलोमीटर डिस्टेंस था बाबा के घर से बाबा का जू, और वहाँ से अब लॉरी भी आ गया और बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को पैक ऑफ भी कर दिया गया, बाबा चला भी गया, जू चला गया। We all missed him greatly, हम लोग बहुत याद करते थे उसको, but in a sense we were relieved, लेकिन कुछ और सोचकर कुछ राहत भी महसूस करते थे, नहीं, राहत भी महसूस करते थे। My wife was inconsolable, लेकिन मेरी वाइफ को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। She wept and fretted, वह रोती थी, बिलखती थी, नहीं, याद कर करके रोती थी उसको, जब भी बाबा का याद आ जाए तो रोना शुरू करती थी। For the first few days she would not eat a thing, लेकिन कुछ दिनों तक तो बाबा के याद में मेरी वाइफ ने कुछ खाई भी नहीं। सोच सकते हो कितना दुख हुआ होगा। Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back come the replies. Well, by fretting, she refused food too. He refused food too. बहुत रोती थी, कई लेटर लिखते थे क्यूरेटर को, बताइए मेरा बाबा कैसा है? बोलता ठीक ठाक तो है, लेकिन वह खाना नहीं खाता है। जब यह रिप्लाई आता था वहां से कि बाबा भी देखो कितने अटैचमेंट था इस फैमिली से, कि वहां से अलग हुआ तो वह भी खाना नहीं खाता है वहां जू में। After that, friends visiting Mysore were begged to make the point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months, I managed to restrain my wife for visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. जब भी मेरे कोई दोस्त मैसूर जाते थे तो मेरी वाइफ जिद करती थी, आप मैसूर जा रहे हैं, जरा सा जू चले जाइएगा, मेरे बाबा को देखकर आइएगा। जब वो वहाँ से आते थे कहता ठीक ठाक तो है, लेकिन बाबा बहुत पतला दुबला हो गया और बहुत उदास रहता है, फ्रेटिंग करता है, रोता है। मैंने तो अपनी वाइफ को किसी तरह 1-2 महीने रोक कर रखा, लेकिन वह भी मेरे समझाने से बाहर हो गया। एक दिन तो उसने गुस्से में कहा कि आप मुझे मैसूर ले जाइएगा या मैं खुद चली जाऊं। मैं भी लाचार होकर अपनी वाइफ को मैसूर लेकर गया। किससे मिलने? अब बाबा से कल मिलेंगे हम लोग। ओके।
मैसूर में? कौन सा? ये